Hello everyone, welcome to my channel IELTS with Experts. Today in this video, I will tell you something about the format of writing task 2. Right, there are so many students who come to me and ask, ma'am, just tell us the format in the form of template so that we could get 7+ spans, right? So here, as you know, that to write a great task 2 essay, it is very important to know that how to organize it, right? How you have to organize your response. So this guide will show you that the important parts to include and how to structure your essay effectively, right? Okay, so let's get started. So let's start with the introduction part. So in introduction part, what you have to do is, as you all know, the students who are preparing for IELTS or who are even beginners in this, let me tell you one thing, that it is very easy for you all to write, to construct your own ideas, to pen down your own ideas if you know the pattern and if you understand the statement carefully. So let's start with an introduction. How you have to form an introduction is, you just have to start with a gerund. For example, आपको कोई भी statement पूछी गई है, let's say private vehicles should be reduced. So the verb, you have to just pick up the verb from here, from this particular sentence. So the verb here is reduced. It should be reduced. Reduce होना चाहिए. You know, as you all know, verb क्या होती है? जो हमारा काम हो रहा है. So what we have to do is, we have to take some initiative so that the reduction should be done, right? Reduction should be there for the usage of private vehicles on roads, right? So फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट विद द gerund. आप gerund से हमेशा सेंटेंस को रीफ्रेस करना स्टार्ट करेंगे. सो एज आई हैव रिटन ओवर हियर दैट रीफ्रेस द स्टेटमेंट बाय यूजिंग synonyms and antithesis. In your introduction, you all just only have to write the statement which already has been written, but it should be somehow written in the different way. You have to use the appropriate synonyms, the different sentence variations, but the meaning should remain same, right? And after that, in your introduction, secondly, you have to mention your viewpoint, that what you are going to write in your further paragraphs, right? And that is basically known as thesis statement, right? So you have to start with the gerund. First of all, you have to find the verb from the statement and you have to add ing with the verb, right? So verb plus ing. For example, reduction was a word here, right? And it was the verb reduce, right? So first form of verb here is reduce. So what will you do is, you will add a verb with ing with the verb. So it will become reducing, or the reduction in the usage of public or in the usage of private transportation should be there. Is it clear? So you will start rephrasing with the gerund. Next, what you have to do is, you just have to add the thesis statement into it. You will write your own opinion. You have to mention your viewpoint, that in which statement do you favor, right? For example, I have written that this statement will expound my viewpoints, expound or will highlight my viewpoints. जैसे आप लोग लिखते हैं usually, that I agree with the statement, right? So rather than writing I is basically a personal pronoun. So in our writing, if you all know, I think आपकी कई teachers ने आपको बताया होगा कि personal pronoun, for example, we, she, us, you, your, हम ये चीज़ें जो हैं his, her use नहीं करते हैं. We do not prefer using all these personal pronouns. So either we just change the sentence structure. So यहाँ पे हम कैसे start करते हैं? This essay will highlight, ये ऐसे क्या highlight करेगा? हमारे viewpoints, मेरे viewpoints highlight करेगा. किसके ऊपर? If you are going on the agree side, so you will write here agreement, or if you are going on the disagree side, so you will go with the disagreement. So this essay will highlight my viewpoints, or this essay will expound my viewpoints on agreement or on disagreement regarding the above mentioned notion. Notion is basically the statement, ऊपर mention की हुई statement के साथ in forthcoming paragraphs. Forthcoming means in upcoming paragraphs, जो बेटा आपके आने वाले paragraphs हैं, with constructive illustrations. Illustrations means examples with relevant, constructive, with rational, जो बिल्कुल appropriate examples हैं, right? So आपने introduction में बेटा सिर्फ इतना सा ही करना है कि जो भी statement दी होगी आपने उसको अपनी language में change करके, अच्छे vocabulary words डाल के, अच्छे synonyms डाल के, आपने passive form में या फिर आपने complex sentences बनाने हैं, तो आप उसके way में आप क्या कर सकते हो, इसको change कर सकते हो. Moreover,
आप क्या करेंगे, ये करने के बाद आप थीसिस स्टेटमेंट ऐड करेंगे कि आप अपने आने वाले पैराग्राफ्स पे बेटा क्या डिस्क्राइब करने वाले हैं। क्लियर हो गया? ठीक है जी, ये होती है हमारी इंट्रोडक्शन। ऐसे लिखते हैं इंट्रोडक्शन। आप ये थीसिस जो है वो याद भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे बता देना कमेंट्स में, अगर आपको और वीडियोस चाहिए जिसमें मैं आपको सारी क्वेश्चन टाइप्स की थीसिस स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब कर दूँ, सो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू सो दैट आई कुड tell you about the thesis of all question types, right? So that it could be helpful for you to learn them. ठीक है, you can make adjustments in them according to your preferences. ठीक है, अपने accordingly आप preference के accordingly कर सकते हैं. Okay, let's move towards the body paragraph 1 and 2 now. What is the formation? How you have to write the body paragraphs? बेटा body paragraphs में ना you have to just give your ideas. For example, as you said, I agree with the statement that the usage of private vehicles should be reduced. कि जो usage जो है private vehicles का on roads it should be minimized. वो कम होना चाहिए. It should be limited, right? So synonyms here I have used 3 synonyms: reduction, minimization, minimized and limited. या फिर restricted I can also say 4th. ठीक है. सो यहाँ पे बेटा आपने क्या करना है, अगर आप अग्री साइड पे गए हो तो यू हैव टू सपोर्ट योर आंसर. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड को कहते हो कि भाई नहीं मुझे ये वाली मूवी नहीं देखनी है, मुझे ये वाली मूवी देखनी है. डेफिनेटली दिस हैपन्स विद अस इन आवर डेली लाइफ, राइट? So one of your friend is saying that no, we will go for this movie and your other friend is saying that no, हमारे इसके जो मतलब रिव्यूज़ हैं वो अच्छे हैं, इसकी रेटिंग अच्छी है एंड वी शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन, राइट? सो आप क्या करते हो उस टाइम पे, है ना? आप क्या कहते हो, नहीं भाई मैं तो भाई अपने ए फ्रेंड के साथ हूँ. तो क्यों हूँ आप उसको बताते हो ना बी फ्रेंड को, भाई मेरे ये फ़ायदे हैं जिस वजह से हमें यही वाली मूवी देखने जानी चाहिए, राइट? सो ऐसे ही बेटा व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योर बॉडी पैराग्राफ इन सच अ वे दैट इट कुड बी एबल टू सपोर्ट योर views, that if you goes on agree side, so examiner you have to make this clear to the examiner that yes why you are on the agree side, right? जैसे कि write that I have written that you have to write that you have many ideas on it. You will start by writing that you have many ideas. जैसे आपकी कोई भी statement है आप पहले लिखोगे starting में कि yes there are many reasons or there are multifarious reasons जिसकी वजह से आपको ये लगता है या जो justify करते हैं कि private vehicles जो है वो limit होनी चाहिए. ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटा, next आप ना एक point बताओगे कि क्यों होनी चाहिए. For example आप बोल रहे हो कि private vehicle से क्या हो रहा है, rash driving youngsters बेसिकली कर रहे हैं जिसकी वजह से नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो हैं वो रोड पे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं. आप ये चीज़ बता सकते हो. ठीक है, देन उसके बाद यू हैव टू सपोर्ट द पॉइंट. आपने एक छोटा सा पॉइंट दे दिया. फॉर एग्जांपल हम अपने हिंदी इंग्लिश वाले एसेस में करते थे, है ना? सो वहाँ पे क्या होता था, आप एक बुलेटेड पॉइंट लिखते थे. जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने गुरु नानक देव जी या फिर आप दिवाली दीपावली के बारे में ऐसे लिख रहे हैं. सो वहाँ पे आप क्या करते थे, यू यूज टू पिक अप द like the title that what you are going to write in the particular paragraph और आप उसको highlight करते थे, right? So in this way आपने एक point लिया, आपने एक keyword बनाया, bulleted point बनाया. next आप क्या करोगे, उसको validate करोगे, उसको आप support करोगे by giving like the explanation for that particular point. For example you said that accidents on roads are increasing, right? So आपका ये एक हो गया bulleted point. Now you will add the connector over here that to explain or to make it more clear, to make it more precise, to explicate in simple words whatever connector you want to use. तो भी आपके टीचर्स ने बताया है या फिर आप मतलब अगर सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर अगर आप ये मेरी वीडियोस देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रेपरेशन कर रहे हैं, so definitely it will like हेल्प यू एंड इवन आप इसमें से सारी चीज़ें भी सीख सकते हैं. ठीक है, सो आपको जिस भी सोर्स से आप कर रहे हैं आप कोई भी कनेक्टर जो बेटा इसमें यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन का. सो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सिंपली इतना मेंशन करोगे कि वेल इट इज़ जनरली ऑब्जर्व्ड ऑन द रोड्स दैट नंबर ऑफ व्हीकल्स हैव एस्केलेटेड मीन्स बेटा ये इंक्रीज हो गई हैं. इट हैज़ मैक्सिमाइज्ड, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट काउंट देखा जा रहा है. सिग्निफिकेंट काउंट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड या इज़ जनरली बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन द रोड्स. इवन क्या करते हैं जो यंगस्टर्स हैं बेटा वो क्या करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, राइट? सो आप एक्सप्लेन करोगे कि रैश ड्राइविंग इज़ जनरली डन स्पेशली बाय द यंगस्टर्स ड्यू टू विच एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग. ठीक है, द रेट ऑफ एक्सीडेंट्स इज इंक्रीजिंग. सो आपने इसी चीज़ को क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है अच्छे वे में. वो मैं आपको अगली वाली वीडियोस में बताऊंगी कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे यूज़ कर सकते हैं.
आप कोई भी वीडियो मिस ना किया करें, सारी वीडियोस आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, मोर एंड मोर, इफ़ देन, ये सारी स्टेटमेंट्स यूज़ करके मैं आपको वीडियो बना दूँगी कि आपको आइडियाज़ कैसे एक्सप्लेन करने हैं, लाइक बाय यूजिंग द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द एग्जाम्पल। आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड द एग्जाम्पल। आप जैसे बताओगे कि देयर आर मेनी नेशंस वेयर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट the nations where the private vehicles are not यूज़, जहाँ पे प्राइवेट व्हीकल्स बेटा यूज़ नहीं की जाती, यहाँ जहाँ या फिर जहाँ पे पब्लिक व्हीकल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल हैं, ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं, इन दोज प्लेसेस वहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑब्जर्व्ड आर वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू द अदर नेशंस वेयर पीपल जनरली ट्रैवल फ्रॉम देयर पर्सनल कन्वेंसेस, राइट। सो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, फिर आप कनेक्टर यूज़ करोगे नेक्स्ट पॉइंट बताने के लिए, उसको एक्सप्लेन करोगे और बेटा उसको कंक्लूड कर दोगे, ठीक है जी। ये हमारा तरीका होता है BP1 BP2 दोनों के पॉइंट्स को एक एलैबोरेट करने के लिए। बस एक पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, बच्चों को कभी कभार नहीं लिखना आता है, तो बेटा अगर आप ये मेरा दिया हुआ स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करोगे, सो डेफिनेटली आपके स्कोर्स जो हैं ये बूस्टअप करेगा, इट विल डेफिनेटली बूस्ट योर स्कोर्स, राइट। ओके, सो let's start with the body paragraph 1. I have written that adequate evidences are obtainable. Adequate means बेटा proper evidences, ठीक है जी। हमें sufficient evidences जो हैं, evidences means proofs are obtainable. Obtainable मतलब हमारे पास हैं to substantiate the concept. Substantiate मतलब कि बताने के लिए, ठीक है, to substantiate the concept of या that, ठीक है। Substantiate the concept that मतलब कि इस चीज़ का कॉन्सेप्ट, तो तब हम लगाएंगे ऑफ। आगे बेटा आप कॉन्सेप्ट बता दोगे, जैसे कि हमने प्राइवेट व्हीकल्स की एग्जांपल ली। सो व्हाट वी कैन राइट हियर इज adequate evidences are obtainable to substantiate the concept that private vehicles should be minimized, the usage of private vehicles should be limited, right। so मैंने क्या बोला कि मेरे पास कितने सारे proofs हैं जो मुझे ये justify कर सकते हैं, बता सकते हैं कि private vehicles का जो usage है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। Nextly हम क्या करेंगे, connector यूज़ करेंगे। वी हैव टू यूज़ द like the connector here for writing our first point. The first and foremost reason is that बेटा ये कोई भी whatsoever question type is coming, you just only have to use this template. You can write this template, right, and you just have to add the points with the explanations, that's all, ठीक है। तो बेटा आप क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट बताएंगे, जैसे आपने बताया द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज दैट इट इज़ बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन रोड्स। आपने ये बता दिया कि ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है एक, इसलिए हमें प्राइवेट व्हीकल्स जो है वो कम करनी चाहिए। टू मेक इट मोर प्रिसाइज बेटा दिस इज अ कनेक्टर ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट अ स्टूडेंट इज गोइंग टू एक्सप्लेन द पॉइंट एज आई टोल्ड यू अर्लियर हेयर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि फर्स्ट पॉइंट के बाद बेटा यू विल हैव टू सपोर्ट योर पॉइंट, राइट। सो यहाँ पे क्या करेंगे आप इसको एलाबोरेट करोगे, ठीक है जी, जैसे आपको मैंने एलाबोरेट करके बताया। नेक्स्ट, बेस्ट एविडेंस मीन्स बेटा एक प्रूफ, एक एग्जाम्पल, या आप इसकी जगह पे इलास्ट्रेशन भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल या एविडेंस या फिर इलास्ट्रेशन टू दिस इज द सर्वे। बेटा एक सर्वे है जो कंडक्ट किया गया था कुछ मंथ्स पहले, कंडक्टेड फ्यू मंथ्स बैक, जहाँ पे इट वॉज रिपोर्टेड, जहाँ पे ये चीज़ रिपोर्ट करी गई थी, देखी गई थी, पाई गई थी दैट इन मैनी नेशंस, कितने सारे डेवलपिंग या डेवलप्ड, वो जो भी आपने अपने पैसेज के अकॉर्डिंगली लिखना है, मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली लिखना है, आप उसमें वेरिएशंस ला सकते हो। यहाँ पे बेटा आई नीड टू क्लियर वन थिंग दैट देयर आर मेनी ऑफ स्टूडेंट्स हु जस्ट राइट डेटा इन द न्यूमेरिकल वैल्यू, दे मेक assumptions. For example, students write 70% of students were observed, 70% of adolescents were observed in like these particular nations where they are using private vehicles, right? So beta assumptions जो आप यहाँ पे बनाते हैं ना, that is somehow irrelevant, ठीक है, बिकॉज सर्वे कंडक्ट हुआ था, ठीक है, द रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स शुड बी देयर। आप जनरली बेटा रादर देन राइटिंग द अज्यूम्ड एग्जाम्पल्स, आप क्या करें, आप रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स को ऐड करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि इट वॉज रिपोर्टेड दैट द नेशंस वेयर प्राइवेट व्हीकल्स क्या की जाती हैं, आर लेस यूज्ड, देयर द एक्सीडेंट्स ऑब्जर्व्ड आर लेस इन नंबर और इन काउंट, ठीक है जी। आप एग्जाम्पल मतलब एक आपको एक ग्लिम्स दे दिया कि हाँ आप ऐसे फॉर्म कर सकते हो। देन मोर ओवर सेकेंड पॉइंट बताएंगे बेटा, सेकेंड पॉइंट क्या है, क्यों प्राइवेट व्हीकल्स जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। एक तो हम क्या बोलेंगे, द रिलीजेस
हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, या फिर मोर ओवर द रिलीज ऑफ फ्यूम्स, ठीक है, फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स, जो फ्यूम्स की इंट्रोडक्शन है, जो फ्यूम्स की जनरेशन है बेटा ऑटोमोबाइल्स व्हीकल से हो रही है, इट इज़ वन ऑफ द अनदर सिग्निफिकेंट रीज़न टू फोकस ऑन। ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिस पे हमें फोकस करना है। टू एक्सप्लिकेट बेटा इज़ अ कनेक्टर जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए। देन दस मीन्स उसके बाद फिर बेटा आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है जी, कि इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या था। अब बेटा यहाँ पे आपने कोई गैप नहीं छोड़ना, कोई लाइन में मतलब लाइन नहीं लीव करनी, कोई स्पेस नहीं देनी, आपने जनरली इस पैराग्राफ को पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है। देन आफ्टर दैट यू हैव टू लीव अ लाइन एंड यू विल स्टार्ट विद द बॉडी पैराग्राफ 2, राइट। सो यहाँ पे बेटा एक ही लाइन छोड़ेंगे आप, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एम्फोसाइजिंग टुवर्ड्स फॉर द पॉइंट्स। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, दिस स्ट्रक्चर इज ओनली फॉर द क्वेश्चन टाइप वेयर यू हैव टू राइट द वन साइडेड एसे। फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग ऑन द अग्री साइड, ठीक है, यू आर गोइंग ऑन द डिसएग्री साइड, completely on agree, completely on disagree, completely positive development, completely negative development, you have chosen A, you have chosen B। so बेटा ये जो है वो सिंगल आपके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, व्यू पॉइंट के साथ जस्टिफाइड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द BP2। एम्फोसाइजिंग मीन्स फोकसिंग टूवर्ड्स फर्दर पॉइंट्स। अगर हम फोकस करें दूसरे पॉइंट के टूवर्ड्स तो हम बोलेंगे कि भाई दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंसिडरेबल पॉइंट। अब हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे। इज़ इट क्लियर, ठीक है, कि प्राइवेट व्हीकल्स का यूसेज जो है वो क्यों कम होना चाहिए, हम नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है बेटा वो बताएंगे। इज़ इट क्लियर, ठीक है। देन उसके बाद दिस इज़ टू से दैट बेटा, दिस इज़ टू से दैट इज़ अ कनेक्टर, ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर सकें, उसी पॉइंट को फिर हमने एक्सप्लेन करना है। इन एडिशन, जैसे हमने ऊपर मोर ओवर यूज़ किया था बेटा, यहाँ पे हम इन एडिशन यूज़ करके अगला पॉइंट बताएंगे। इन अदर वर्ड्स इज़ अगेन द कनेक्टर, ठीक है, जो हम एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर ये एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ किए हैं, दिस इज़ टू से दैट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टू एक्सप्लिकेट, ये ऐसे वाले वर्ड्स, टू मेक इट मोर प्रिसाइज, एंड देन कॉन्सिक्वेंटली बेटा मतलब रिजल्ट, ठीक है, एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, हेंस। सो ये जो है जैसे हमने ऊपर भी यूज़ किया 10 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी हम कॉन्सिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। सो बेटा इस वे में आप जो है अपना राइटिंग टास्क का बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 यू कैन राइट। ओके, लेट्स मूव टू द कंक्लूशन नाउ। कंक्लूशन में बेटा क्या होता है, यू डू नॉट हैव टू ऐड अ न्यू आइडिया हेयर। आपको कोई भी न्यू आइडिया जो है बेटा कंक्लूजन में ऐड नहीं करना है, ठीक है। आप कैसे स्टार्ट करते हो, ऑल्दो येट लगाते हो आप, ऑल्दो बट भी लगाते हैं कुछ लोग, बट ऑल्दो येट हम जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑल्दो मतलब बेशक ये चीज़ है पर आगे फोकस दूसरी चीज़ पे दिया जाएगा बेटा, ठीक है। बेशक यंगस्टर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक पसंद है, आप कह सकते हो, प्राइवेट व्हीकल्स को यूज़ करना, बट येट इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वी शुड इट्स डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स शुड नॉट बी ओवरलुक्ड। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं बेटा वो क्या नहीं होने चाहिए, उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, दैट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड या इग्नोर्ड या ओवरलुक्ड। इज़ इट क्लियर? सो होप you all found this video so helpful, ठीक है। So you can just take the screenshots over here, let me show you, or you can write down in your notebook, ठीक है। This is the structure for your BP1 and BP2 and for your conclusion, right? So आप इसको अगर आपने करना है तो आप अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे पॉज दे दिया, आप इस स्ट्रक्चर को नोटबुक पे नोट करें एंड वंस यू विल start writing by like considering this particular structure, so definitely you will yourself observe the improvement in yourself, right? Your scores will definitely boost up with this. Okay, thank you. So this was all about the format of writing task 2 जो basically मैंने students की demand पे बनाया है. And let me tell you one thing also, I have shared the video for the latest topics of writing task 2 which are very important for this September 2024 exam. So hopefully आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है अच्छे से and you have gone through all the questions which I have explained there. So अगर आपने नहीं देखा है so you must once have to go with that, ठीक है। सो आप देख लें, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, थैंक यू, बाय, विल मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।